Yeah, good morning, everyone. In the last class, I did talk about the first derivative test and its application to find the maximum and minimum value of a function. And then later, I also introduced the concept of second order derivative test, which is simplified and less calculative in comparison to the first derivative test. So, quick look at the second derivative test. Get the derivative, equate to 0 after factorization, get the stationary points, get double derivative और डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए जो भी आपने पॉइंट्स निकाले हैं. So let me say one of the critical point is x equal to c. तो c के ऊपर if the double derivative is negative, it is a point of local maxima. If the double derivative is positive, it is a point of local minima. And by chance, if double derivative is again 0, then the first derivative test fails and you have to revert back to the first derivative test. But generally, you will not find any such situation in the examination. So we already discussed a polynomial function based question. Next, this was given to you in your homework. You need to find the local maxima and local minima. Let me consider this fourth part. Derivative of this is cos x and then minus minus plus sin x. For local maxima or local minima, we just need to put derivative equals 0. That is cos x plus sin x is 0, or sin x is equal to minus cos x. Cos x से डिवाइड कर दिया, tan x is minus 1. तो यहां तक तो ये स्टैंडर्ड स्टेप्स रहे हैं. And then also we are given with the range for x 0 to 2 pi. To think logically, in the one complete rotation in 0 to 2 pi, tan x minus 1 है. तो चेक करिए हम कैसे इसको लिखते हैं. ये 11th का चीज आ गया. tan x is minus tan pi by 4, 1 की वैल्यू रख दी. और tan नेगेटिव कहाँ होता है? It is negative in the second and fourth quadrant. Second quadrant में आने के लिए पाई माइनस थीटा होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा. रिमेंबर ये सब 11th की चीज है, और अगर ये याद नहीं रहा या नहीं आता करना, you won't be able to solve this. So recall all these working rules, because getting the values of x initially is very important. So x would be, कंपेयर करिए, 3 पाई बाय 4, ये एलसीएम ले लिया, और नेक्स्ट इज 7 पाई बाय 4. Now 0 is excluded, 2 pi is excluded. So I have these 2 points where I need to check the local maxima and minima. I am of course using second derivative test. Get the double derivative. ये रहा सिंगल डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स एंड देन प्लस कॉस एक्स. केस 1, केस 2, when x is say 3 pi by 4, what is double derivative at this particular point? Again remember, हमें आंसर से मतलब नहीं है. We just need the sign, whether it's positive or negative. So how I am going to solve this? ये रिवर्स थिंकिंग डायरेक्ट है. ये चीज फिर 11th में किया हुआ है. एंड व्हाट इज दिस?
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ये आ गया। सो दिस इज -1/√2 एंड देन -1/√2। आगे आप सॉल्व करो या ना करो, हमें इतना पता चल गया that double derivative is negative. So what is the conclusion? If double derivative is negative, this implies x equal to 3 pi by 4 is a point of local maximum. And what is local maximum value? वो वैल्यू है सिंपली फंक्शन में रिप्लेस x बाय 3 पाई बाय 4। तो ये रहा मेरा फंक्शन, तो साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4। सिंप्लीफाई, यू विल गेट द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। Same way, in homework, do attempt the case 2 when x is 7 pi by 4. Probably it is local minima that you can easily verify. So first derivative test is calculated, वो मैं यहाँ प्रेफर बिल्कुल नहीं करूँगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव से ही अब हम करने वाले हैं। Please mark your attendance, everyone, before we move on. Quickly mark your attendance. So this is again a direct question we already have discussed. In से G part, सिर्फ critical point की बात करें, how I am going to get its critical values. Do remember already given in the question that x has to be positive. So these conditions are important if given in the question. So what is the derivative? No need for LCM, direct derivative करो। x by 2 का डेरिवेटिव 1/2 और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। So this is 1/2 minus 2/x². Now let me take the LCM, 2x² and this is x² minus 4. For local maxima minima, we are going to put derivative equals 0. So when this is 0, it will give me x² equal to 4 and x is plus minus 2. और दूसरी चीज याद रखिए, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां डेरिवेटिव या तो इक्वल टू 0 हो या नॉट डिफाइन हो। तो चेक करिए, ऑल्सो g-x इज नॉट डिफाइंड। कहां डिफाइन नहीं है? when x is 0। अगर मैं यहां x को 0 रख दूंगा, this is not defined. So this is also x equal to 0 is also a critical point. But since in the question itself the condition is already given to me that x has to be positive, इसीलिए ये भी रिजेक्ट हो जाएगा और -2 भी रिजेक्ट हो जाएगा, और only one critical point to be taken as x is equal to 2. बस इसके बाद get the double derivative
और डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करिए. इफ इट इज ग्रेटर देन 0, local minima. If it is less than 0, local maxima at x is equal to 2. So complete further in your homework. Same way, you can check out this question. डायरेक्ट पार्ट से, सो प्लीज डू इट इन योर होमवर्क. अब जैसे अगर इसका 8th पार्ट की बात करूं, वी नीड जस्ट द डेरिवेटिव, अप्लाई द प्रोडक्ट रूल एंड गेट इट्स डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव वुड बी फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो ये कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन 2 root 1 minus x plus root 1 minus x over 1. Take the LCM and in a usual way equate to 0. Oh sorry, यहाँ 1 minus x आ रहा है only, not the square. So ये कितना आ जाएगा, 2 times 1 minus x. For local maxima minima, I am going to put this as equal to 0. So minus x plus 2 minus 2x is 0. Minus 3x is equal to minus 2. x आ गया 2/3. वो इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है. तो this is going to be my critical point. Now get double derivative, little bit calculative. यहाँ डबल डेरिवेटिव थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, राइट. क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा आपको. एंड गेट द साइन ऑफ डेरिवेटिव एट 2/3. चॉइस इज yours. इफ यू प्रेफर एंड यू वांट टू अवॉइड द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि उसमें क्वोशिएंट रूल थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, यू कैन ऑलवेज यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. So I don't recommend that to use here. Prefer second derivative test only. From NCERT exercise 6.5, prove that the following functions do not have the maxima or minima. है ही नहीं, तो check it out. सिंपल एक ये पार्ट बताता हूँ. इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, e पावर x, और हमें पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा द डेरिवेटिव हैज टू बी 0. तो e पावर x शुड बी 0, which is not possible. Which is not possible. Why? E की पावर x is always positive. x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इट हार्डली मैटर्स. e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 0 कभी नहीं हो सकता. हेंस डेरिवेटिव कैन नॉट बी 0. क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. देयरफॉर नो मैक्सिमा, नो मिनिमा. सेम वे चेक आउट फॉर द सेकंड एंड थर्ड पार्ट. डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, बस ये आपको जस्टिफाई करना है. यस, ठीक है. यस भानु, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और देते हैं क्विकली. फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन. सेम क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आ चुका है. तो 50% ऑफ द स्टेप रिमेन्स द सेम. ये हमने 11th में स्पेशली असाइनमेंट में लिया था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना. तो व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव,
साइन पावर 4x का nx n माइनस 1 इंटू चेन रूल साइन का डेरिवेटिव cos. नेक्स्ट प्लस cos 4x का डेरिवेटिव nx n माइनस 1 इंटू बेस एज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x. I can see that 4 sin x cos x is common. In bracket I left with sin square x minus cos square x. Let me take minus common from here. There is a reason. और इस 4 को लिख दिया 2 into 2. Understand this smart approach. तो यहां से माइनस कॉमन कर दिया था. टू साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x. कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉस 2x. These are your standard formulas. और फिर से अगर आप ध्यान से नोटिस करें 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा which will make it minus of sin 4x. तो ये आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव. एनी डाउट टू एनीवन प्लीज आस्क. इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जब तक मैं डेरिवेटिव एक सिंपलर फॉर्म में नहीं ला पाऊंगा आगे नहीं आप प्रॉपर सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट इज अ यूजुअल अप्रोच फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा. डेरिवेटिव को 0 रख दिया और साइन 4x इज 0 और 0 होता है साइन एन पाई के ऊपर. क्लास 11th में किया हुआ है. इन सिंपल वर्ड 4x आ गया एन पाई और x इज एन पाई बाय 4. याद रखिए आपको क्वेश्चन में ये गिवन था x शुड बी इन 0 to पाई बाय 2. तो अगर आप n को पुट करना शुरू करते हैं 0, 1, 2 या -1, -2 एंड सो ऑन, सिर्फ n इक्वल टू 1 के ऊपर आपको क्या वैल्यू मिलेगी. n को 1 रख दिया पाई बाय 4. तो x की वैल्यू पाई बाय 4 है जो इस इंटरवल में आ रही है गिवन इंटरवल में. दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट. आप n को 2 रखो पाई बाय 2 आ जाएगा नॉट लाइंग इन द रेंज. n को 0 रखा फिर 0 नॉट लाइंग इन द रेंज. ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू से तो आएगा ही नहीं 0 से पाई बाय 2 के बीच में. तो कॉमन सेंस है सिर्फ n इक्वल टू 1 के ऊपर you are getting the critical point as pi by 4. Once I have critical point, अब तो सिंपल है. Get the derivative. इसका डेरिवेटिव साइन का cos और 4x का 4 आ गया. Get double derivative at critical point. Which is actually cos pi. Do not forget cos pi होता है -1. तो फाइनली डबल डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब x इक्वल टू पाई बाय 4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. प्लीज चेक आउट द रूल्स सेकेंड डेरिवेटिव के
और पॉइंट सिर्फ निकाल दिए, लोकल मिनिमा आ गया ये वाला। और सेकंड पार्ट इसमें पूछा नहीं है, बट अगर आपसे कहा जाता ऑल्सो व्हाट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, वो होगी फंक्शन के अंदर आप रख दो π/4 साइन, ये फंक्शन है मेरा, एंड सिंप्लीफाई। ये सिंपल कैलकुलेशन है। साइन π/4 होता है 1/√2, और सेम केस इसमें ये ट्वाइस हो जाएगा। यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। कैन यू बी मोर एक्टिव? कुछ पूछ सकते हैं, कोई डाउट? नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज अबाउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी हमने पहले क्या बात करी थी? लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई ऑलरेडी हैव यूज्ड दिस टर्म अर्लियर आल्सो। Absolute maxima or minima means the global maxima or minima. A function may have two local maximum points, but उन दोनों local maxima में भी जो maximum जा रहा है वो हो जाएगा absolute maximum. But in this case, do remember you should be then given with the closed interval. So if you are given with some function fx, it will be given in a closed interval. Then only you can find out absolute maxima and minimum. So look at the following graph. One can easily note, assuming that this point is included and this point is also included in the function. So my function जो है y equal to fx, ये defined है in the interval a, d. ये a से d तक आपका ग्राफ जा रहा है. Now note carefully what is happening. My function is having the local maxima at this point and this point. और इन दोनों में से यहां पर ये ले गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू, एंड इफ आई कंसीडर दिस, ये लोकल मिनिमा है और ये लोकल मिनिमा है, इन दोनों में से भी मिनिमम वैल्यू फंक्शन यहां ले गया है। तो बाई चांस इस ग्राफ से लग रहा है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर ही इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा आ गया है. इट मे और मे नॉट बी ऑलवेज द केस. So there is a simple theorem, quickly you can check it out. So the function should be continuous for sure. I can graph it without lifting my pen. So absolute maxima minima तो exist करेगा ही अगर closed interval में function defined है. Another simple theorem, अगर function assume कर रहे हैं कि differentiable है, then f dash x at a point, critical point, अगर कोई भी ऐसा है उस पे 0, तो absolute maximum और absolute minimum. What does that mean? At any point you consider derivative has to be 0.
as we learned in the case of local maxima and local minima. So working rule क्या होगा? तो चलो रिजल्ट हैं, थ्योरम्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट चेक इट आउट. Find all critical points of f in the interval. और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब हमने क्या देखा था? Either f dash x is 0 और f is not differentiable. हम कई बार इस कंडीशन को मिस कर जाते हैं, तो ये याद रखिए, डेरिवेटिव 0 हो या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो. जैसे अभी लास्ट टू लास्ट एक क्वेश्चन आया था ना, डेरिवेटिव 0 के ऊपर डिफाइन नहीं आ रहा था, वो तो उसमें x ग्रेटर देन 0 कंडीशन गिवन थी, इसीलिए मैंने 0 को इग्नोर कर दिया था. अदरवाइज दैट शुड हैव बीन कंसीडर्ड एज अ क्रिटिकल पॉइंट. अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना. Unnecessarily I have seen number of students find a double derivative, and to my surprise, in number of the good reference book also they are finding the double derivative. आप निकाल लो, उससे भी वही आंसर और जस्टिफाई होगा जो एक्चुअल में आंसर है. बट द वर्किंग रूल एंड द कंसेप्ट सेज you do not require double derivative to find in case if it is a question of absolute maxima and minima. तो ये याद रखिए आपको, no double derivative is to find, नहीं निकालना है, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव से जो क्रिटिकल पॉइंट है एंड जो इंटरवल था क्लोज इंटरवल, उसके एंड पॉइंट्स को भी लेना है. और उसके बाद क्या करिए, आप फंक्शन की वैल्यू निकाल दो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, करेक्ट. और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, उनमें से जो मिनिमम है वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा. डायरेक्ट कंक्लूजन. कुछ डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव चेक नहीं करना है. Please make a note of this. Then I will take one example. So first part, derivative equal to 0, critical points, and end points are also be considered. डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी एब्सोल्यूट. और अगर कई बार क्वेश्चन आपको बोर्ड में ऐसा आया हुआ है, ये टर्म नहीं देते जानबूझ के, बट अ क्लोज इंटरवल इज गिवन, सो दैट इज द क्लियर कट हिंट. इफ द क्वेश्चन इज find the maximum and minimum value in a closed interval, definitely it is referring to the absolute only. क्लोज इंटरवल एब्सोल्यूट को ही रेफर करता है. एनीवे, फंक्शन गिवन है, लेट्स स्टार्ट. डेरिवेटिव सिक्स कॉमन, spreading the middle term, for absolute maxima or minima, put derivative equals 0, which will give me the value of x as 2 and 3. और चेक करिए ये आपके इस इंटरवल के बीच में लाई करने चाहिए. इन केस कोई ऐसा पॉइंट आए जो इस इंटरवल के बीच में नहीं है, रिजेक्ट दैट, दो यू विल नॉट फाइंड एनी सच क्वेश्चन. बट कंसेप्ट यही है क्लियर के इसी के बीच में आएंगे. अब आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना, सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट, ये एंड पॉइंट्स,
ये देखो आपके पास लॉजिकली सोचो, चलो ये नंबर लाइन पे मेरे को जाना था, 1 से 5 में मेरा फंक्शन डिफाइन है, और फिर आ गया एक पॉइंट, आ गया 2, एक आ गया 3. गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ऑल दीज पॉइंट्स, दैट्स इट. तो वो कैसे निकालेंगे? फंक्शन मेरा ये रहा. सो x की जगह 1 रखा, and solve it. So 2 minus 15 plus 36 plus 1, ये आ गया आपका 39 में से 15 गए, 24. सिमिलरली f ऑफ 2 निकाल दीजिए. अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा विच इज 8, 2 स्क्वायर 4, 36 इंटू 2 एंड प्लस 1. तो 16 minus 60 plus 72 plus 1. Solve it in a usual manner. 89 में से 60 subtract कर दीजिए, 29. Get the value at 3. 3 का cube 27, 3 square 9, and solve it. So 20, ये आ गया 54 minus 15 into 9, 135 plus 108 and plus 1. What is this value? 109 और 54 में पहले ऐड कर देता हूँ, 163, और इसमें से 135 माइनस कर दिया, 8 and 28. And what is f of 5? 125 हो गया, 5 का क्यूब 5 square 25 and 36 into 5 and plus 1. So I will get all these values. ये अब आप क्विकली अपने आप निकाल कर देख लीजिए. जो भी ये वैल्यूज आ गई, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एंड दैट अकर्स एट से x इक्वल टू 1. सो वो आप इन्हीं आंसर्स में से कंक्लूड कर लेंगे. Remember, if you are using NCERT book which is older one, 2019 से पहले वाली, उसमें इसका सॉल्यूशन गलत दिया गया है. 2019 के बाद के एडिशन में इसको सही किया गया है. देयर वाज सम कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ ऐसा रहा था, दैट यू कैन वेरीफाई. और देयर इज अ सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, दैट यू कैन इजीली वेरीफाई. एनी डाउट टू एनीवन? ये बता ही दो जरा, ये वैल्यू कोई बता रहा है कितना आ रहा है? एफ ऑफ 5 कितना आया? सो 125 इंटू 2 तो चलो हो गया 250, एंड देन मुझे करना है 25 इंटू 15, 250, और ये 375 हो जाएगा, एंड देन 36 इंटू 5 which is 180 and plus 1. तो 180 एंड देन प्लस 1 करा, और प्लस कर दिया मैंने 250, और इसमें से माइनस कर दिया 375. द वैल्यू इज 56. तो बस इनमें से यहाँ वही मिनिमम आ रहा है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये आ गई, एंड 56 इन सभी में मैक्सिमम है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. एंड इफ आई ग्राफ दिस फंक्शन, इट कैन इजीली बी वेरीफाइड. ये वाले पॉइंट से ही देखकर पता चल जाएगा.
Okay, ठीक है प्रणव अनन्या, perfect. And now the question for your homework. Exactly the similar question. और अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज, एब्सल्यूट वर्ड नहीं दिया है जैसा मैंने कहा था, बट क्योंकि क्लोज इंटरवल गिवन है, by default it is a question of absolute maxima minima, hence no double derivative is to be found. आप निकाल के कर लो, उससे भी यही कंक्लूजन आएगा, फिर बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बुक्स दे रही हैं बट मार्किंग स्कीम में नहीं होगा, बोर्ड में मार्क्स नहीं कटेंगे. Again, a very similar question for your homework, direct for absolute maxima and minimum. Last question for the day. Think logically. It is given that at x equal to 1, this function attains maximum value. आप चेक करिए, what is its derivative? 4x cube minus 124x plus a. 1 के ऊपर कह रहे हैं ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है. Since at x is equal to 1, fx is taking maximum value. What does that mean? 1 must be the critical point. 1 is critical point, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही मैक्सिमा या मिनिमा आएगा. और फिर अगर 1 क्रिटिकल पॉइंट है तो डेरिवेटिव एट 1 मस्ट बी 0. डेफिनेशन ये रहा f डैश x, आप x की जगह 1 रख दीजिए एंड इक्वेट टू 0. तो 4 minus 120 plus a is 0, your required answer. A very basic but logical question. Another question for your homework. आप चेक करिए, क्लोज इंटरवल में मैक्सिमा पूछा है, तो क्लियरली एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है. लिटिल बिट कैलकुलेटिव, और कंफ्यूजन कहाँ, सिर्फ इसका डेरिवेटिव और इक्वल टू 0 कर क्रिटिकल पॉइंट निकालने में गलती हो सकती है. तो प्लीज बी वेरी श्योर अबाउट दैट. So this is all about today's class, and from next class we are going to start with very important word problems based on maxima and minima. Please mark your attendance and then you can leave the class. Everyone. Thank you, sir. Yeah, thank you. Yes, quickly leave the class.